Good morning, dear students. In the previous class, we have discussed about the proteins. We said that the proteins can have four different conformations: the primary structure, the secondary, tertiary, and quaternary. In the primary structure, we said that it is a linear chain of amino acids, whereas the secondary structure was of two types. Either the secondary structure can be the presence of a helical loop-like structure, or it can be made up of two or more polypeptides to form a flat sheet-like structure known as beta-plated sheets. Both these alpha helix and beta sheets were stabilized by hydrogen bonds. The third type of structure was the tertiary structure, and the tertiary structure will be a single polypeptide coiled upon itself to form a spherical structure. This spherical structure will be stabilized by large number of bonds, which are hydrogen bonds, disulfide bond, peptides bonds, or ionic van der Waals or hydrophobic interactions. And lastly, we said that the quaternary structure of proteins, which consists of only multimeric proteins, मतलब दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स इनमें प्रेजेंट होंगी, और पॉलीपेप्टाइड्स जो प्रेजेंट होंगी each can have their own tertiary or secondary structure. For example, hemoglobin में दो अल्फा और दो बीटा हेलिक्स होते हैं, दो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स, मतलब two alpha units and two beta units will be present. So it is made up of four polypeptides. So we need to understand that proteins might have presence of different types of conformational 3D structures. Now proteins were made up of amino acids and they were linked by peptide bond. Carbohydrates are made up of monosaccharide units which will be uniting to form a polysaccharide and connected by glycosidic bond. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना कि कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आता है और प्रोटीन्स में द बॉन्ड प्रेजेंट इज द पेप्टाइड बॉन्ड मेनली. अब हम बात करते हैं अबाउट द थर्ड सच वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड दैट इज द लिपिड्स. लिपिड्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, बट लिपिड्स आर ऑलवेज हैविंग अ वेट less than 800 Dalton. So lipids are never polymers. Lipids कभी भी polymeric form में नहीं होते. Lipids हमेशा monomers ही होते हैं. पर lipids क्यों हमें acid insoluble fraction में मिलते हैं? Because of its nature. Lipids are having an insoluble type of nature, due to which they were obtained in the acid insoluble fraction. Otherwise, अगर weight के हिसाब से देखा जाए तो lipids भी क्या हैं? Micromolecules ही होते हैं. तो lipid में कोई macromolecule form ही नहीं है. जब हम proteins कहते हैं तो हम क्या कहते हैं कि amino acids are micromolecules और proteins are macromolecules. Monosaccharides are micromolecules and polysaccharides are macromolecules. ऐसा हम लिपिड्स के लिए यूज नहीं करते क्योंकि लिपिड्स जो है ड्यू टू देयर नेचर दे वर फाउंड इन एसिड insoluble fraction. Otherwise lipids are always having a molecular weight less than 800 Daltons, due to which it will be found only as a micromolecule. लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स किससे बने हुए होते हैं? So lipids are the esters of fatty acid and alcohol. Lipids are esters of, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. लिपिड्स में क्या इंक्लूड होता है? फैटी एसिड और अल्कोहल ग्रुप. सो दीज टू, और इनके बीच में एस्टर बॉन्ड, किसके बीच में? अल्कोहल और फैटी एसिड के बीच में एस्टर बॉन्ड होता है. तो कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड और लिपिड्स में होता है एस्टर बॉन्ड between
तो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि ईथर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। ईथर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन जैसे सॉल्यूशन में लिपिड्स सॉल्युबल होते हैं। When lipids are added to water and you just mix the lipids, there is formation of small droplets. So lipids get uniformly dispersed in the water, forming small droplets, and this formation of the small droplets is referred as the emulsion. क्या कहते हैं इसे? emulsion कहा जाता है। लिपिड्स को जब हम पानी ऐड करके थोड़ा मिक्स कर लेते हैं तो लिपिड्स जो है they will be observed in the form of small dot like structures. These droplet like structures are known as the emulsion. क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स हो चुका है तो वैसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? emulsion कहा जाता है। लिपिड्स को अगर देखा जाए तो what are they made up of? So lipids also they are made up of carbon, hydrogen and oxygen. Mainly lipids में भी क्या होता है? Carbon, hydrogen and oxygen. This is same as what? Carbohydrates. Carbohydrates are also made up of carbon, hydrogen and oxygen. Lipids are also made up of carbon, hydrogen and oxygen. But here the number of oxygen are very less than the number of carbon or hydrogen. Usually हमने ये पढ़ा था that the ratio of hydrogen to oxygen was 2:1 in carbohydrates. जबकि यही चीज लिपिड्स के लिए करेक्ट नहीं है क्योंकि लिपिड्स के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन बहुत ही कम होते हैं और हाइड्रोजन और कार्बन का नंबर ज्यादा होता है। Okay, so ratio 2:1 will not be maintained for the lipids. In the lipids there is sometimes there is presence of phosphorus or nitrogen or sulfur. Phosphorus, nitrogen या sulfur भी present होता है but not always. It is present in some of the rare lipids only. If we talk about common examples, lipids के कौन से examples हमें बहुत ही commonly present या पता होता है तो उसमें include हो जाता है आपका butter, घी, cholesterol, cooking oil, pigments like carotene or lycopene, vitamin A, vitamin E, ये सारे ही सब्सटेंस या इसके अलावा अगर आप यूकैलिप्टस ऑयल कहें, राइट, या तो फिर मेंथॉल कहें या रबर, राइट, मेंथॉल जो होता है जो मिंट फ्लेवर्स में होता है, ये सारे ही एग्जांपल्स हैं लिपिड्स के। बटर, घी, कोलेस्टेरॉल, कुकिंग ऑयल, केरोटीन, लाइकोपीन, ये दोनों पिगमेंट्स हैं। केरोटीन पिगमेंट कैरेट में होता है और लाइकोपीन पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द टोमेटोज। ओके, विटामिन ए, ई, के, विटामिन ए, ई और के तीनों आएंगे। यूकैलिप्टस ऑयल जो होता है वो भी लिपिड का एग्जांपल है। रबर जो हमें मिलता है वो भी लिपिड का एग्जांपल है। These are just few examples of lipids. अगर हम लिपिड्स की बात करें तो हमने सबसे पहले लिखा है कि लिपिड्स में दो चीजें होती हैं, फैटी एसिड और अल्कोहल। दो ग्रुप्स होने वाले हैं, फैटी एसिड और अल्कोहल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स आर long chains
with a terminal carboxylic group। क्या होता है, फैटी एसिड्स में एक हाइड्रोकार्बन की चेन है, राइट, और इस चेन के एंड पे क्या होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कितने हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, दे कैन रेंज फ्रॉम 4 to 24 कार्बन्स। जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें मिनिमम 4 कार्बन से लेके 24 कार्बन तक एक्सटेंड होता है, बट कॉमन आर 16 to 18 कार्बन्स। मोस्टली जो लिपिड्स हम डाइट में लेते हैं उनमें क्या होता है, 16 to 18 कार्बन्स की एक चेन होती है। तो फैटी एसिड्स जो है वो हाइड्रोकार्बन की चेन है और उनमें टर्मिनल एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ये हाइड्रोकार्बन की चेन है उसमें मैक्सिमम 4 से लेके 24 कार्बन्स होते हैं, पर मोस्टली जो होता है वो है 16 to 18 कार्बन्स के फैटी एसिड्स होते हैं। अब ये जो फैटी एसिड्स हैं इनमें और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि प्लांट्स आर एबल टू सिंथेसाइज all the fatty acids on their own. Okay, plants can synthesize all the fatty acids, but animals cannot synthesize. Animals cannot synthesize 3 ऐसे फैटी एसिड्स हैं जो हम नहीं बना सकते, और वो है लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड, राइट। 3 ऐसे हैं, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड। ये 3 ऐसे फैटी एसिड्स हैं जो हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें कहा है एसेंशियल फैटी एसिड्स। ओके, देयर आर 3 such fatty acids which we cannot synthesize, so we depend upon plants for those fatty acids. These are linolenic, linolenic and arachidonic fatty acids. तो इन तीनों को कहा जाता है एसेंशियल फैटी एसिड्स। इसके अलावा बाकी के फैटी एसिड्स हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब आगे ये जो फैटी एसिड्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। दैट वी विल डिस्कस फर्दर, दैट व्हाट आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड व्हाट आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। So as we said that lipids are made up of fatty acids and alcohol. In the last point we said that there are such fatty acids which cannot be synthesized by animals. These fatty acids which cannot be synthesized by animals includes the, which fatty acids are included? Linolic acid, linolenic acid and arachidonic acid. और जो fatty acid हम नहीं बना सकते उन्हें कहा जाता है the essential fatty acids। हमने बात की थी कि fatty acids 2 तरह के होते हैं। So fatty acids are either saturated fatty acids or they can be unsaturated fatty acids। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड में क्या फर्क होता है? तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स डू नॉट हैव
double bond. There is presence of one or more double bond. एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में. सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. मेल्टिंग पॉइंट इज हाई. ओवर हियर द मेल्टिंग पॉइंट इज लो. मेल्टिंग पॉइंट इज लो. Unsaturated fatty acids are mostly found in plants. जो plant fat होता है वो unsaturated fatty acids होते हैं, जबकि animal fats जो होते हैं found in animal fats. तो जो animals consume करते हैं, right? तो animals में deposited होता है saturated fatty acid, जबकि हम जो प्लांट प्रोडक्ट्स लेते हैं जैसे कि सनफ्लावर ऑयल है या तो फिर कुकिंग ऑयल होते हैं अलग अलग तरह के जो हमें मिलते हैं प्लांट्स में से, उनमें होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. हमारी बॉडी को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की जरूरत बहुत ही ज्यादा होती है. Therefore we regularly use unsaturated fatty acids in our food that we cook. Saturated fatty acid की जनरल फॉर्मूला CnH2nO2 होती है. Saturated fatty acids have a general formula CnH2nO2, whereas unsaturated fatty acids have CnH2n-2O2. जनरल फॉर्मूला भी दोनों की अलग होती है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड्स आते हैं जबकि यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है. यहाँ पे सारे कार्बन सैचुरेटेड है, इसीलिए कोई भी हाइड्रोजन या हेलोजन को एक्सेप्ट नहीं करते, जबकि अनसैचुरेटेड विल बी एक्सेप्टिंग एनी हाइड्रोजन और हेलोजन मॉलिक्यूल. अदर देन दैट द इंपॉर्टेंट थिंग इज सैचुरेटेड में एग्जांपल आपको याद रखना है पाल्मिटिक एसिड. तो जो पाल्मिटिक एसिड है, ये पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन्स होते हैं, इसलिए इनकी फॉर्मूला हो जाएगी C16. H will be the double number, so H will be 32 and O will be 2. There is another example, stearic acid. Stearic acid has presence of 18 carbons, so there will be C18. H will be double the number 36 and O2. अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें तो पहला एग्जाम्पल है ओलिक एसिड. ओलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड होता है और एक डबल बॉन्ड होने की वजह से उसे कहा जाता है मोनोइन. मोनोइन इसीलिए क्योंकि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. ठीक है, तो ओलिक एसिड जो है उसमें 18 कार्बन्स होते हैं, तो उनकी फॉर्मूला C18. H क्या होना चाहिए 36, पर 36 की जगह पे H will be 34 and O will be 2. वैसे ही लिनोलिक एसिड को कहा जाता है डाइईन क्योंकि यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, तो दो डबल बॉन्ड की वजह से डाइईन कहा जाता है और उसमें फॉर्मूला बन जाएगी C18H32O2. राइट, आर यू गेटिंग व्हाई वी आर रिमूविंग टू कार्बन्स ओवर हियर? बिकॉज़ डबल बॉन्ड फॉर्म होगा तो एक एक कार्बन रिमूव हो जाएगा. राइट, इसलिए नंबर ऑफ कार्बन्स विल बी नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स विल बी रिमूव. तो कार्बन तो 18 ही रहेंगे पर हाइड्रोजन जो है वो कम होंगे. लिनोलिक के बाद लिनोलेनिक. लिनोलेनिक एसिड में 3 कार्बन मतलब 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो 3 डबल बॉन्ड होने की वजह से ये फॉर्मूला C18H30O2. In this way, as the number of double bond increases, the number of hydrogen are going to reduce. More number of double bonds, more number of double bonds, इसे कहा जाता है poly unsaturated fatty acids. It is known as poly unsaturated fatty acids PUFA. So more अगर ज्यादा डबल बॉन्ड्स है, अगर आप घर पे ऑयल लाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके जो
ज्यादा होते हैं, more is the unsaturation, better it is for your health. Okay, so polyunsaturated fatty acids की बात की। दूसरा के फैटी एसिड्स जो है उनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और हाइड्रोकार्बन चेन है, राइट। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हाइड्रोफिलिक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो हाइड्रोफिलिक ग्रुप है, मतलब वाटर लविंग है। जबकि हाइड्रोकार्बन चेन जो है, हाइड्रोकार्बन चेन, ये हाइड्रोकार्बन चेन होती है हाइड्रोफोबिक, और हाइड्रोफोबिक होने की वजह से इट इज वाटर हेटिंग। तो लिपिड का जो फैटी एसिड्स हैं उनमें एक पार्ट वाटर लविंग है और एक पार्ट वाटर हेटिंग है। जब हम लिपिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे एक सर्कल और टेल बनाते हैं। द सर्कल रिप्रेजेंट्स द अल्कोहल एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, whereas the tail represents the chain of hydrocarbon. तो ये जो पोर्शन है ये क्या है, हाइड्रोफोबिक, it will be away from the water, whereas head part is hydrophilic, water loving, and this is the reason for lipids to be insoluble in the water, because they are amphipathic, they have a water loving group also and a water hating group also. So this was about the lipids. In the next class we will discuss the types of lipids. लिपिड्स में होते हैं सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स। तो तीनों के बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सिंपल लिपिड, व्हाट इज